Hi guys, welcome back to this channel, and in this video I am going to explain about complete process of TCS Wings 1. As many of you joined TCS recently or having less than 1 year of experience, and it might be confusing to some of you what is prerequisite, what is step 1, step 2, what is innovator, how many things you need to clear to get that digital badge, and how to know prerequisite is completed or not, when will be the cutoff, what are the rules for selecting tech track and non-tech track, in which course you need to get pass, you need to get distinction, what are the criteria of getting distinction, what are the assessment process. So everything about Wings 1 I will explain in this video, so please watch this video till end to understand the complete process, okay? And I can guarantee by the end of this you will get the complete understanding of TCS Wings 1 process. And if I'm able to explain you in a simple way, please like this video. So let's start this video and let me brief you about what is Wings 1. So Wings 1 is a talent transformation program for TCS employee to upgrade their profile and CTC. एंड इसके दो माइलस्टोन होते हैं, डिजिटल एंड इनोवेटर। एंड जिस एम्प्लॉय की प्रोफाइल डिजिटल से बिलो होती है, जैसे निंजा, इग्नाइट, स्मार्ट कैंडिडेट, ये सारे प्रोफाइल्स हैं और ये लोग विंग्स 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और असेसमेंट क्लियर करके अपनी डेजिग्नेशन एंड सीटीसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें 90 to 100% का हाइक मिलता है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो। एंड इनोवेटर आपको बनने के लिए आपका ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको पहले डिजिटल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, ओके। एंड इट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर, सो इसके एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, मई एंड नवंबर में। एंड इट हैज़ डिफरेंट रूल्स एंड क्राइटेरिया अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी। एम्प्लॉय का ग्रेड क्या होना चाहिए, उसका अप्रेजल बैंड क्या होना चाहिए, अगर वो 1 साल से कम है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है नहीं। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई विल गारंटी you will get the complete understanding, okay? So let's start with you and first understand what is dashboard. So dashboard is just a visual representation of your Wings 1 journey. You can track what course you have completed, what you need to complete for next milestone, and for many of you dashboard अभी ऐसा दिख रहा होगा, but once you clear digital dashboard कुछ ऐसा हो जाएगा, and once you clear innovator dashboard कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके? सो अभी मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि सपोज़ आपने अभी ना डिजिटल क्लियर किया है ना इनोवेटर, सो आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू सी योर डैशबोर्ड, just log into your Ultimatix, go to iWall and just navigate to right top. You will see a profile icon, click on it, and then a drop down will appear and click on dashboard. Your Wings 1 journey and dashboard will appear, and whatever tracks you are seeing in the dashboard, बिजनेस, प्रोसेस, कोर, फुल स्टैक, यूनिट, इलेक्टिव, आर्टिकुलेशन, डोमेन, इनको क्लियर करने के 2 तरीके हैं, ओके? दैट इज़ पास एंड डिस्टिंक्शन। सपोज आप किसी ट्रैक के असेसमेंट देते हो, अगर आपको पास ग्रेड मिलता है तो उस पर्टिकुलर ट्रैक के सामने आपका ग्रीन सर्कल बन जाता है, जैसा कि इसमें कोर फुल स्टैक में बना हुआ है। एंड सपोज आप किसी ट्रैक में डिस्टिंक्शन पाते हो तो आपका ग्रीन स्टार हो जाता है, जैसा कि इसमें बिजनेस या यूनिट इलेक्टिव में आप देख पा रहे हो, ओके? सो ये था कुछ तरीका बताने का कि आपका उस पर्टिकुलर कोर्स में पास है या डिस्टिंक्शन। इन द डैशबोर्ड टू द एक्सट्रीम लेफ्ट आप देख पा रहे हो लिखा है माइलस्टोन प्रीरिक्विजिट। इन द मिडल स्टेप 1 एंड अप टू द एक्सट्रीम राइट स्टेप 2। इन द माइलस्टोन प्रीरिक्विजिट डोमेन एंड आर्टिकुलेशन इज मैंडेटरी टू क्लियर, एंड इन द स्टेप 1 it is mandatory for you to get the distinction in any core full stack track to get it cleared. And for step 2 you have so many options to clear. You can pass any one exam in step 2 and you can clear your step 2. Like if you get distinction in either business or process or in unit elective, it will be cleared, or just pass in core full stack. In the later slides I will explain about each tracks in detail. Let's start with domain and get complete understanding. Under milestone prerequisite, domain is the first one. So for domain, no proctored assessment for it at the TCS ION Center. बाकी सारे ट्रैक्स के लिए आपको TCS ION Center पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आपका वो क्लियर होता है, बट डोमेन आप अपने घर पे अभी कंप्लीट कर सकते हो, ओके? एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आप अल्टीमेटिक्स में लॉगिन करके iWall पोर्टल पे जाओ। देन विंग्स 1 सर्टिफिकेशन की जो आईडी है 15205 IT पीपल्स के लिए एंड 15206 ITIS के लिए, तो आप जिस भी डोमेन के हो उस सर्टिफिकेशन आईडी को ओपन करके
देन आप उसमें ग्रुप 8 में चले जाओ एंड पाथ 1 आपका लर्निंग मॉड्यूल है एंड पाथ 2 आपका असेसमेंट मॉड्यूल है। यानी अगर आप पढ़ के कंप्लीट करना चाहते हो तो पाथ 1 में से कोई एक कंप्लीट कर लो एंड अगर आप असेसमेंट दे के कंप्लीट करना चाहते हो तो पाथ 2 में से कोई एक कंप्लीट कर लो, आपका डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, बहुत ईजिली आप असेसमेंट दे के आप अपना डोमेन कंप्लीट कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एंड आप सिंपल आधे घंटे में अपना डोमेन कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे आप कंप्लीट करोगे आपका वो स्टेटस डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा, ठीक। और ये डिजिटल माइलस्टोन के लिए मैंडेटरी है, आप डोमेन का कंप्लीशन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। Now next we will see about articulation, what are rules for it, how to complete its prerequisite. And articulation comes under the category of non-tech track. So let's discuss about this. इसके लिए आपको प्रॉक्टर्ड असेसमेंट देना होगा TCS साइंस सेंटर पे एंड जो भी आपका रिजल्ट होगा पास और डिस्टिंक्शन उसके हिसाब से आपका स्टेटस डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं आर्टिकुलेशन का प्रीरिक्विजिट आई-वॉल में कंप्लीट कर लिया है तो मेरा डैशबोर्ड अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। तो कैसे अपडेट होगा, वो सिर्फ प्रीरिक्विजिट है, आप प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करोगे तभी आपको एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड इशू होगा। एंड अगर आप आईऑन सेंटर का एग्ज़ाम क्लियर करते हो देन ओनली आपका डैशबोर्ड में अपडेट होगा स्टेटस। एंड आईऑन सेंटर में आपके आर्टिकुलेशन के 37 to 40 MCQ क्वेश्चन होते हैं एंड इट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट्स प्रीरिक्विजिट इन आई-वॉल डेट बिफोर कट ऑफ डेट टू बी एलिजिबल टू गेट द एडमिट कार्ड एंड फॉर नवंबर साइकिल इट इज़ 26 सितंबर। एंड इसके प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करने के लिए आई-वॉल में लॉगिन करके आप जो भी डोमेन है आप 15205 15206 कोई भी विंग्स1 की एक सर्टिफिकेशन आईडी चूज़ करके आप ग्रुप 3 में चले जाना एंड देन आप इसके 4 प्रीरिक्विजिट कोर्सेज हैं, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ओके। एंड मैंने भी एक वीडियो पोस्ट करी है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकुलेशन, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जाके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा आपके इसको कैसे प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करने हैं। एंड प्रीरिक्विजिट कंप्लीट होगा तभी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। एक भी कोर्स अगर आपने छोड़ दिए प्रीरिक्विजिट में आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो मेक श्योर आप कट ऑफ डेट से पहले आर्टिकुलेशन की प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करो एंड सेम आप रजिस्ट्रेशन सर्वे फॉर्म में फिल करो एंड उसको सबमिट करो कट ऑफ डेट से पहले, देन यू कैन गिव द एग्ज़ाम फॉर रेस्पेक्टिव ट्रैक। एंड जैसे ही आप आईऑन सेंटर का एग्ज़ाम क्लियर करते हो इधर पास और विद डिस्टिंक्शन आपका ये डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। एंड फॉर डिजिटल माइलस्टोन आप सिर्फ आर्टिकुलेशन में पास ग्रेड लेके आओ तब भी ये कंसीडर किया जाएगा। एंड फॉर इनोवेटर माइलस्टोन डिस्टिंक्शन इज मैंडेटरी इन आर्टिकुलेशन। सो देयर आर 2 डिफरेंट रूल्स फॉर आर्टिकुलेशन फॉर डिजिटल एंड इनोवेटर। डिजिटल के लिए सिर्फ आपको पास चाहिए एंड इनोवेटर के लिए आपको डिस्टिंक्शन चाहिए आर्टिकुलेशन में, ओके। नाउ लेट्स मूव टू कोर फुल स्टैक ट्रैक। एंड फॉर कंप्लीटिंग कोर फुल स्टैक ट्रैक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन अप टू T17। यू कैन कंप्लीट एनी वन टेक ट्रैक विद डिस्टिंक्शन टू गेट योर स्टेप 1 कंप्लीटेड। बट इसकी एक रूल है, आप जो भी टेक ट्रैक सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका यूनिट स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आप जिस भी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हो वो प्रोजेक्ट किसी ना किसी यूनिट के अंदर आता होगा। फॉर एग्जांपल CSP, BFSI, देयर आर सो मेनी यूनिट इन TCS फॉर एवरी प्रोजेक्ट। सो पहले आप अपने प्रोजेक्ट की यूनिट पता करो, देन उस यूनिट के अंदर जितने भी टेक ट्रैक अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट निकालो एंड उसमें से आप कोई भी एक टेक ट्रैक सेलेक्ट करके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, उसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करो एंड आप उसका असेसमेंट दे दो, ओके। बट अगर आपको अपनी यूनिट पता चल गई है एंड आप यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक पता करना चाहते हो तो आप सिंपल से जो मैंने स्टेप पॉइंट 2 में मेंशन करा है कोर्स ID 80840, आप इसको सर्च करके आई-वॉल में जाओ, आप इसको लॉन्च करोगे तो आपका एक कोर्स लॉन्च होगा एंड आपकी एक एक्सेल शीट ओपन होगी। आप इसमें डिफरेंट यूनिट के टेक ट्रैक्स लिस्टेड हैं, आप अपनी यूनिट पता करो एंड जाके चेक करो आपकी यूनिट में कौन सा टेक ट्रैक अवेलेबल है और उस टेक ट्रैक में से कोई भी एक टेक ट्रैक सेलेक्ट करके आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। एंड जो भी टेक ट्रैक आप सेलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर वो यूनिट स्पेसिफिक हो जैसा मैंने पहले बताया, और सेम आप उसका प्रीरिक्विजिट आई-वॉल में कंप्लीट करो बिफोर द कट ऑफ डेट और उसका एडमिट कार्ड जैसे मिलता है आप उसका असेसमेंट दे सकते हो। एंड सारे टेक ट्रैक के असेसमेंट 2 फेज़ में होते हैं, MCQ एंड हैंड्स ऑन। अगर आप MCQ क्लियर करते हो तभी आपको हैंड्स ऑन देने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ आप डिस्कार्ड कर दिए जाओगे। अगर आप MCQ में फेल होते हो तो आपको हैंड्स ऑन देने का चांस नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट साइकिल में फिर से इस ट्रैक के लिए बैठना होगा। सो इसको
चेक करने के लिए आप iVol में लॉगिन करना एंड विंग्स वन सर्टिफिकेशन ID 15205 और 15206। देन आप ग्रुप 2 टेक्नोलॉजी में चले जाना एंड जो भी आपका यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक है, जो भी आप सेलेक्ट किए हो, आपको आपकी यूनिट में वो ट्रैक आता होगा, आप वही सेलेक्ट करना एंड किसी भी एक ट्रैक चूज़ करके आप उसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको चेक करके कैसे आप ईजीएस्ट टेक ट्रैक चूज़ कर सकते हो, इसको देखो जाके। तो जैसा डैशबोर्ड में देखा, स्टेप 1 के लिए आपको किसी एक टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन चाहिए, तभी आपका स्टेप 1 क्लियर होगा। एंड अगर आप उसको स्टेप 2 के लिए चूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ पास भी ग्रेड लाते हो किसी एक टेक ट्रैक में, तो वो स्टेप 2 के लिए कंसीडर किया जाएगा। एंड ये थे कुछ कोरफुल ट्रैक के बारे में। सो आपको इसमें बहुत सारे ट्रैक मिल जाते हैं, बट मेक श्योर आप जो भी ट्रैक चूज़ कर रहे हो वो आपके यूनिट के अंदर होना चाहिए। अगर यूनिट के बाहर का ट्रैक चूज़ करते हो तो आप उसमें कोई भी ग्रेड लाओ, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में अब तक मैंने माइलस्टोन प्रीरिक्विजिट एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें डोमेन एंड आर्टिकुलेशन थे। एंड स्टेप 1 में कोर फुल स्टैक एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें बहुत सारे टेक ट्रैक्स थे। एंड अब मैं बढ़ता हूँ स्टेप 2 की तरफ, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बिजनेस स्किल, यूनिट इलेक्टिव, प्रोसेस, कोर फुल स्टैक, और उसमें देखते हैं ईजीएस्ट कौन सा है। ठीक है, सो लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी विल सी अबाउट बिजनेस स्किल। सो इट ऑल्सो कम्स अंडर नॉन टेक ट्रैक एंड इसके भी प्रॉक्टेड असेसमेंट होते हैं TCS साइंस सेंटर में, बट इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 तरीके मिल जाते हैं, बिजनेस स्किल 1 एंड बिजनेस स्किल 2। आप इसमें से कोई भी एक स्ट्रीम सेलेक्ट करके आप उसका असेसमेंट दे सकते हो। ठीक है, एंड इसका भी एग्जाम पैटर्न सेम आर्टिकुलेशन की तरह होता है। 37 to 42 MCQ क्वेश्चन आते हैं एंड इसका एग्जाम CBT मोड में ही होता है। एंड इसके भी रूल सेम थे, आप इसके प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करोगे तभी इसका एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। सपोज आपने इसमें एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। सपोज उन्होंने कंप्लीट किया है प्रीरिक्विजिट बिजनेस स्किल 1 का एंड उन्होंने सर्वे फॉर्म में फिल किया बिजनेस स्किल 2, तो उनको एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने प्रीरिक्विजिट कंप्लीट किया है बिजनेस स्किल 1 का एंड सर्वे फॉर्म में भरा है कि मैं बिजनेस स्किल 2 का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो ये कैसे आएगा एडमिट कार्ड। ओके, सो मेक श्योर आप जिसका प्रीरिक्विजिट कंप्लीट कर रहे हो आप सेम भरो सर्वे फॉर्म में। 1 का कर रहे हो तो 1 का करो, बिजनेस स्किल 2 का प्रीरिक्विजिट कंप्लीट कर रहे हो तो बिजनेस स्किल 2 फिल करो। सो मेक श्योर ये ध्यान देना, ये बहुत लोगों के साथ होता है। एंड इसका प्रीरिक्विजिट आपको iVol में ग्रुप 6 में मिल जाएगा, आप कोई भी एक कंप्लीट करके उसका असेसमेंट दे सकते हो। एंड इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीरिक्विजिट कैसे कंप्लीट करना है, क्या कोर्सेस हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक, एंड जैसे आप इसका आईओन सेंटर एग्ज़ाम क्लियर करते हो, पास या डिस्टिंक्शन, आपका ये स्टेटस डैशबोर्ड में अपडेट हो जाता है लाइक अदर टेक ट्रैक और नॉन टेक ट्रैक्स। एंड स्टेप 2 में अगर आप इसको चूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्टिंक्शन मैंडेटरी है बिजनेस स्किल मिलाना, तभी ये किसी भी माइलस्टोन के लिए कंसिडर किया जाएगा। नाउ लेट्स सी अबाउट प्रोसेस। सो प्रोसेस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टेक ट्रैक एंड इसके जो भी रूल्स हैं सारे अदर नॉन टेक ट्रैक की तरह सिमिलर हैं। इसके भी प्रॉक्टेड असेसमेंट होते हैं TCS साइंस सेंटर में एंड इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो 37 to 40 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, CBT मोड में ये भी होता है। एंड यू हैव टू कंप्लीट इट्स प्रीरिक्विजिट एंड इन्वॉल्व बिफोर द कट ऑफ डेट एंड as many of you know for November cycle the cut off date is 26th of September, so just complete its prerequisite in the iVol to get the admit card। एंड इसका प्रीरिक्विजिट आपको ग्रुप 4 में मिल जाएगा, जितने भी ग्रुप 4 में कोर्सेस अवेलेबल हैं प्रोसेस के आप सारे कंप्लीट करो तभी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा एंड देन आप प्रोसेस का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक, एंड प्रोसेस के लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके इसके चेकआउट करो, आपको कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और क्या प्रीरिक्विजिट में कौन सा कंप्लीट करना है आप जाके देख सकते हो। एंड आप अगर आईओन सेंटर का एग्ज़ाम जो जिस भी ग्रेड से क्लियर करते हो, पास या डिस्टिंक्शन, ये आपका जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपका ये डैशबोर्ड में अपडेट हो जाता है। ओके, एंड अगर आप अपना स्टेप 2 प्रोसेस से कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन ग्रेड लाना मैंडेटरी है। जैसा कि आप सबको पता है स्टेप 2 में आप कोई किसी एक कोर्स को चूज़ करके आप उसमें जो भी ग्रेड है वो ला सकते हो, बट अगर आप प्रोसेस चूज़ कर रहे हो तो डिस्टिंक्शन इज़ मैंडेटरी टू क्लियर स्टेप 2। नाउ कमिंग टू द ईजीएस्ट वे टू क्लियर योर स्टेप 2, दैट इज़ यूनिट इलेक्टिव। And like business skill, it also has 2 stream, internal unit elective and external unit elective। internal unit elective TCS एग्ज़ाम करवाती है, ये प्रॉक्टेड होता है एंड आप इसके प्रीरिक्विजिट कंप्लीट करके आप इंटरनल एग्ज़ाम दे के इसको क्लियर कर सकते हो। बट एक्सटर्नल यूनिट इलेक्टिव
जितने भी एक्सटर्नल वेंडर्स होते हैं सर्टिफिकेशन के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल, आप इनके कोई भी एक सर्टिफिकेशन क्लियर करके इस सर्टिफिकेशन को आप आईवॉल में अपलोड कर दो, जो भी कोर्स आईडी है, देन आप इसको क्लियर कर सकते हो इफ़ यू गॉट डिस्टिंक्शन इन द सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। एंड एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के लिए जैसा आप सबको पता है TCS वाउचर प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इसको जाके चेक कर लेना कैसे आप TCS से वाउचर फ्री में ले सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, AWS को हो या गूगल का हो। बट यूनिट इलेक्टिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, जैसे टेक ट्रैक में था कि जो भी टेक ट्रैक आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका यूनिट स्पेसिफिक होना चाहिए। सेम आप यूनिट इलेक्टिव में जो भी आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन चूज़ कर रहे हो वो सर्टिफिकेशन आपके यूनिट में होना चाहिए, तभी वो आपके स्टेप 2 के लिए कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज़ आप कोई भी एक से रैंडमली एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन चूज़ करते हो और उसको आईवॉल में अपलोड करते हो तो वो आपके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप अपने यूनिट का एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन लिस्ट निकालो और उस लिस्ट में से कोई एक सर्टिफिकेशन चूज़ करके आप उसको परस्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड सपोज़ आपने एग्ज़ाम दे दिया एंड आपको डिस्टिंक्शन मिल गया। जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, आपका 1 से 2 दिन में सर्टिफिकेट या तुरंत आ जाता है या तो 1 से 2 दिन लग जाता है। एंड जैसे आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आप इसको अपने आईवॉल में उस सर्टिफिकेशन आईडी से अपलोड करो और CVO से अप्रूव करवाओ। CVO अप्रूव कर देते हैं 2 से 3 दिन में। एंड जब वो CVO से अप्रूव हो जाएगा तब वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एंड मेक श्योर आपका ये जो पर्टिकुलर विंग्स वन साइकिल के लिए हर एक कोर्स का एक कट ऑफ डेट होता है। कट ऑफ डेट से पहले आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, तो यूनिट इलेक्टिव के लिए भी है कट ऑफ डेट नवंबर साइकिल के लिए। सो उसके पहले आपका सारा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये नवंबर साइकिल के लिए कंसिडर किया जाएगा। एंड आपने सब टाइमली कर दिया, अप्रूव हो गया CVO से, आपका सर्टिफिकेशन भी अपलोड हो गया। एंड जब एक्यूमुलेटली सारे टेक ट्रैक नॉन टेक ट्रैक का रिजल्ट अनाउंस होता है किसी भी पर्टिकुलर साइकिल का, तभी ये यूनिट इलेक्टिव के कंप्लीशन का स्टेटस आपके डैशबोर्ड में शो करता है, ठीक। आपने सर्टिफिकेशन में डिस्टिंक्शन लाया है तो वहाँ पे वो ग्रीन स्टार अपने आप अपडेट हो जाता है रिजल्ट आने के बाद। अब तक मैंने डिजिटल जर्नी तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, डोमेन, आर्टिकुलेशन, कोर, फुल स्टैक, बिजनेस, प्रोसेस, यूनिट इलेक्टिव। सो आई नो सम ऑफ यू ऑल्सो गेटिंग क्यूरियस अबाउट इनोवेटर माइलस्टोन, so let me brief about it to you. So what things need to be completed to get it, so let's see. So innovator is the last milestone in Wings One journey and it has 7 stream: articulation, process, business, unit elective, core, full stack and innovator coding challenge। एंड आपको इन सभी स्ट्रीम में डिस्टिंक्शन मैंडेटरी है, ठीक। जितने भी को टेक ट्रैक या नॉन टेक ट्रैक मैंने एक्सप्लेन करे प्रीवियस स्लाइड में, आपको सभी ट्रैक्स में डिस्टिंक्शन चाहिए। आप किस, ठीक है, आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन, प्रोसेस में डिस्टिंक्शन, बिजनेस में डिस्टिंक्शन, यूनिट इलेक्टिव में डिस्टिंक्शन, 1 कोर फुल स्टैक में डिस्टिंक्शन एंड इनोवेटर कोडिंग चैलेंज में डिस्टिंक्शन, ठीक है। सो ये रूल्स हैं, ये सारे ट्रैक्स आपको डिस्टिंक्शन से क्लियर करने हैं इनोवेटर बैज लेने के लिए। एंड फॉर इनोवेटर कोडिंग चैलेंज ये रूल है कि यू कैन ओनली सेलेक्ट दैट टेक ट्रैक फॉर विच यू हैव पास और डिस्टिंक्शन ग्रेड इन द फुल स्टैक ट्रैक। आपने डिजिटल में विंग कोर फुल स्टैक एग्ज़ाम देते टाइम जिस भी ट्रैक में पास या डिस्टिंक्शन ग्रेड लिया है, सिर्फ आप उसी ट्रैक के लिए इनोवेटर कोडिंग चैलेंज दे सकते हो। आप इनोवेटर कोडिंग चैलेंज करने के लिए ऐसा कोई यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक नहीं चूज़ करना होता है। जिस भी ट्रैक में आपके पास या डिस्टिंक्शन ग्रेड है, आप उस ट्रैक में इनोवेटर कोडिंग चैलेंज दे सकते हो, ठीक है। मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है डिजिटल टू इनोवेटर कंप्लीट जर्नी के लिए, आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी, जाके इसको चेक कर सकते हो। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, यूनिट वाइज, कोर्स वाइज, ट्रैक वाइज, क्या किसकी क्या क्राइटेरिया है क्लियर करने के लिए। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंप्लीटेड अबाउट विंग्स वन प्रोसेस ऑफ TCS। एंड इफ़ यू गॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and don't miss your opportunity to try this exam. And if you still have any doubt regarding TCS or Wings One, you can ask me in comment section. I will explain in detail. Thanks for watching.